بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا ریویژن اینڈ ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کو ان چیپٹرز کو جو آپ لوگوں نے ڈیٹیل کلاس روم میں ان کے لیکچرز لیے ہوئے ہیں ان کی ریویژن کروائی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اس وقت چیپٹر نمبر 2 ہے جس کا نام ہے لیسن نمبر 2 کلیئرنگ ان دا اسکائی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز یو آل نو دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ دس چیپٹر in detail in our classrooms, and today we will start with the revision and test session strategy. And today this chapter is going to be discussed in perspective of board point of view. بیٹا آپ جیسے جانتے ہیں کہ سب سے پہلا کوسچن اس چیپٹر کا یہاں پہ لکھا ہوا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، سینونیم بیسڈ ایکسرسائز. آپ اس لیکچر کو سننے سے پہلے اپنے پاس ایک پینسل اور ایک پیپر رکھ لیں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو سالو کریں، کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے تو آپ ایک پریکٹس کے طور پہ بھی اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس میں لرننگ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں کچھ موجود اسائنمنٹس ہوں گی، کچھ کام ہوں گے، ٹاسک ہوں گے جو میں آپ کو دوں گی، جو کہ آپ لوگوں نے کل تک مجھے اسی ٹائم سے پہلے اس کو سبمٹ کروانا ہوگا. اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ ود دا کوسچن نمبر 1، سینونیم بیسڈ ایکسرسائز. نو سینونیمس بیٹا ایک ہی ورڈ کا اسی لینگویج میں میننگ کو کہا جاتا ہے. آپ بخوبی واقف ہیں کہ بورڈ میں آپ کا یہ کوسچن 10 مارکس کا آتا ہے، یعنی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی ایک ورڈ انڈر لائن ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ 4 آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں جس میں سے ایک موسٹ پاسبلی کریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے اگر ہم اس کا پہلا ایم سی کیو دیکھیں، all paths go to the same place. He answered, then why take the steep one? I asked. The underlined word is steep. There are 4 options given: zigzag, short, vertical, long. Think for a second. Steep کا مطلب ہوتا ہے عمودی. آپ نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے تو آپ کو ان لفظوں کے مطلب تو اردو میں آتے ہی ہوں گے. اب آپ نے انگلش میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا آپشن ان کے مطلب کے ساتھ سب سے زیادہ سوٹ کر رہا ہے اور کون سا ان کے لیے سب سے زیادہ اپروپریٹ آپشن ہے. تو کیا اس کا آنسر بنا اسٹیپ کا؟ ورٹیکل. آئی ریپیٹ اگین، ورٹیکل. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایم سی کیوز کے ساتھ انہوں نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ یہ ایم سی کیو کس بورڈ میں کس گروپ میں کتنی دفعہ آ چکا ہے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ ریویژن کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی بورڈ ایکسرسائز بیسڈ ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے وہ یا تو بورڈ میں آ چکا ہے یا بورڈ میں آ سکتا ہے، لہٰذا اس کو آپ نے کینلی اسٹڈی کرنا ہے. Let's move to the second MCQ. My father answered me curtly. Now the word is curtly and the given options are smilingly, politely, bluntly, interestingly. آپ ٹرانسلیشن میں اس ورڈ کو پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، بے رخی سے، رخی انداز میں، غصے سے یا یکدم کسی چیز کو ریئیکٹ کرنا ان این اینگری وے. تو یہاں پر جو آپشن موسٹ سوٹیبل ہے، think for a second, and the correct answer is bluntly. Jess' curiosity was aroused. Jess اس کا جو ورڈ ہے underline that is curiosity. بہت آسان، ریپیٹیڈلی آپ کو کلاس روم میں اس کے میننگس بھی بتائے گئے ہیں. The thing that is interesting, and the given options are temperature, hatred, interest and indignation. So without any doubt we will mark interest. Fourth MCQ. The fingers of trees were fondling the substance of white clouds. The underlined word is fondling. Fondling کا مطلب جیسے ہم نے ٹرانسلیشن میں پڑھا تھا، مستیاں کرنا، اٹکھیلیاں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہمارے پاس آپشنز ہیں these are showing, hiding, teasing, caressing. Without any doubt the option is caressing. Last synonym of this exercise: I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. Now the underlined word is rugged.
The options are level, smooth, rough, steep. Now dear students, without any doubt and confusion, the correct option is rough. क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है गैर हमवार, वो चीज़ जो कि स्ट्रेट ना हो, ऊपर नीचे हो, या जो एक सिमेट्रिकल अंदाज में ना हो, तो वो चीज़ रफ़ होती है, लेवल्ड नहीं होती. इसके साथ हमने 5 MCQs का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है. ये क्वेश्चन आपके पेपर में 10 मार्क्स का आता है. आप इसकी सिग्निफिकेंस को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 10 मार्क्स का वेटेज आपके पेपर को एक अच्छा खासा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है. आप इसको प्रैक्टिस के साथ साथ भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इस पर सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं. बेटा नेक्स्ट मूविंग टू द question that is words for synonym from past papers. Now these are the given words and there are blanks. You can see these given words are supposed to be translated in the same language and we must choose or select alternative words for them. इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको MCQs बेस्ड में MCQs की शक्ल में यहाँ पर आ सकता है, तो आपको इन वर्ड्स के पॉसिबल मीनिंग्स आने चाहिए. The first word is streams, watercourse, flow. आप अपने साथ साथ पेंसिल अपने हाथ में रखें और जो जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ उन वर्ड्स को आपने साथ साथ लिखते जाना है, जो कि आपकी असाइनमेंट का हिस्सा होंगे. ये आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. सो स्ट्रीम्स, वाटरकोर्स, फ्लो. ब्लफ, एक ऐसी चीज़ जो आप कह सकते हैं जिस पे चढ़ाई की जाती है, पहाड़, छोटी पहाड़ी टाइप, क्लिफ कह सकते हैं आप, हिल कह सकते हैं. सो पॉसिबल synonymous answers for this word are hill and cliff. Substance, कोई ऐसी चीज़ जो मादे पे बेस्ड हो, मादी चीज़, कोई भी चीज़, मटीरियलिस्ट, कोई भी मटीरियल हो सकता है सब्सटेंस, तो उसका पॉसिबल ऑप्शन आपके पास मैटर हो सकता है. ब्रैग्ड, किसी चीज़ के लिए शेखी बिगाड़ना, किसी चीज़ को फ़ख्रिया अंदाज से कहना. एंड मोस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस वर्ड इज़ boasting. When you boast of something, you are bragging for that thing. The next word is wipe. Wipe, the act of rubbing. जब आप किसी चीज़ को वाइप करते हैं, जब आप किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, तो the act of rubbing is most probably the suitable synonym for this word. The next word is aroused. Aroused, किसी चीज़ का उभरना, किसी चीज़ का उभर के बाहर आना, किसी चीज़ के लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग. तो इसके लिए जो मोस्ट पॉसिबल वर्ड है वो आप कह सकते हैं स्टीमुलेटेड. पोस्ट अराउज्ड के लिए स्टीमुलेटेड. इंटरप्टेड, जब किसी चीज़ में मुदाखलत की जाती है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इंटरप्ट करना. बहुत इजी है, बारहा आप इससे गुज़र चुके हैं, आपके सामने से वर्ड गुज़र चुका है. और इसके लिए जो मोस्ट प्रेफरेबल सूटेबल वर्ड है वी कैन से इट इज़ इंटरफेयर. टू इंटरफेयर इन समथिंग, इंटरप्टेड. स्टॉल वर्ड, एक ऐसी चीज़ जो मज़बूत है, एक ऐसी चीज़ जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो स्टॉलवर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे. और इसके मोस्ट जो पॉसिबल सिनोनिम है दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग और स्टाउट. स्ट्रॉन्ग और स्टाउट. आप होपफुली साथ साथ अपनी पेंसिल्स के साथ इसको नोट भी कर रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कल के असाइनमेंट का हिस्सा है. क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, क्रॉलिंग. जब कोई चीज़ जानदार या बेजान किसी भी चीज़ को जब कोई रेंगती है तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं और इसका इंग्लिश में सिनोनिम है creep. Now dear students, moving to the next part of this exercise, comprehension based MCQs. आप पेपर पैटर्न से बखूबी वाकिफ़ हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया
10 नंबर के MCQs आते हैं सिनोनिम्स बेस पर और 5 मार्क्स के आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड MCQs आते हैं। ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इनका वॉल्यूम 5 मार्क्स का ज़रूर है, लेकिन अगर आप इन पे थोड़ी सी तवज्जो करें, चैप्टर की डिटेल्स को याद रखें, तो आप इसमें 5 आउट ऑफ 5 गेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये MCQs जो कि आपके सामने अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुख्तलिफ बोर्ड्स में और मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। सो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें, What did the old man cut with his pocket knife? And the given options are a sapling, a flower, a wisp of alfalfa, a tomato. Think for a second. The right answer is a wisp of alfalfa, जो कि ख़ास किस्म की घास होती है, उसको उसने काटा था एक पॉकेट नाइफ के साथ। How many children had the old man? बूढ़ा आदमी जिसका नाम चैप्टर में मेंशन नहीं है, जेस के फादर की बात हो रही है, उसके कितने बच्चे थे? 3, 4, 5 और 7। ये इंफॉर्मेशन हमें चैप्टर में दी गई है that he had 5 children including Jess. Next MCQ is how many doctors did Jess father visit? आपके बिल्कुल फर्स्ट पेज पर स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि जेस के वालिद साहब कितने डॉक्टर्स तक विज़िट कर चुके थे अपनी सेहत के हवाले से। सो द करेक्ट आंसर इज़ 8. What type of special tree was found by the old man? आप अगर चैप्टर को रिकॉल करें तो जेस का वालिद जब उसको लेकर जा रहा होता है, ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जेस को एक ख़्याल आता है कि एक दफ़ा उनके वालिद साहब को एक दरख्त मिला था और वो दरख्त का नाम भी चैप्टर में मेंशन है। गिवन ऑप्शंस आर एप्पल, कॉफ़ी, चेरी, ऑरेंज। सो द करेक्ट आंसर इज़ कॉफ़ी। Dear students, now moving to the next segment of this exercise, some important lines for MCQs. आपको बेटा इस तरह लाइंस नहीं आएंगी, आप लोगों को MCQs की शक्ल में ही ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये वो लाइंस हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ ईयर्स में ये आ चुके हैं और इन्हीं में से MCQs भी बन चुके हैं। तो आप मेरे साथ साथ, चूँकि आप सब ने अपने हाथ में पेंसिल्स पकड़ी हुई हैं, लिहाजा आप लोग मेरे बोलने से पहले कोशिश करें कि उसका आंसर लिख लें और ये चैप्टर आपके सामने ओपन हो। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइस द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट? कितने साल पहले डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को नसीहत की थी कि वो आराम करें? लेट्स थिंक फॉर अ मिनट। Yes, the correct answer is 40 years ago. 40 साल पहले डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को नसीहत की थी कि वो आराम करे। What did the old man cut with his pocket knife? उसने अपने चाकू से क्या काटा? जब वो ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे तो बूढ़े आदमी ने अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाला और कुछ काटा। अभी अभी हमने उसका एक MCQ भी सॉल्व किया है, तो आंसर क्या बना इसका? A wisp of alfalfa. In how many years did the old man improve the land? कितने साल लगे उसको इस ज़मीन को बेहतर बनाने में? बूढ़े आदमी को तकरीबन 30 साल लगे। आपने बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, 40 years and 30 years। 40 साल पहले डॉक्टरों ने उसको आराम करने का बोला, लेकिन उसने डॉक्टर्स की नसीहत के ख़िलाफ़ जाकर इस ज़मीन को इम्प्रूव किया, इसको कल्टीवेट किया और उसमें उसको 30 साल लगे। सो आपने 30 और 40 में कंफ्यूज नहीं होना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, वाई डिड द ओल्ड मैन हंट फॉर द स्क्रोल्स? वो गुलहरियों का शिकार क्यों किया करता था बूढ़ा आदमी? जी डेफिनेटली फॉर मील, क्योंकि वो इसको अपने बेटे के साथ जब जेस छोटा था आया करते थे और इनका शिकार किया करते थे और शाम को एक मैसिव क्वांटिटी घर लेकर जाते थे फॉर देयर मील।
Where did Jess lose his plough? उसने अपना जो एक छोटा सा एक लकड़ी का फाला, एक लकड़ी का एक छोटा सा खिलौने की तरह की एक चीज़ उसके वालिद साहब ने उसको बना के दी थी, वो उसने कहाँ उसको खो दिया? उसने एक छोटी सी नाली में उसको खो दिया. There were rows of dark stalwart plants. There were rows of dark stalwart plants. Now यहाँ देख सकते हैं कि एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है और ये MCQs की शक्ल में हमने अभी पीछे सॉल्व किया है. तो आप इस वर्ड को जहन में रखिएगा जिसका मतलब होता है strong. The meaning of this word is strong. इसके बाद एक fill in the blank. The land was fenced by dash. उस ज़मीन को जंगला लगाया गया. किसने लगाया उस ज़मीन को जंगला? डेफिनेटली जिसने इतने साल, द ओल्ड मैन, जिसने इतने साल स्ट्रगल की, उसी ने उसको जंगला लगाया. और ये भी इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर में दी गई है कि उन्होंने मवेशियों से बचाने के लिए उसको फेंस किया था ताकि कोई भी मवेशी भूला भटका वहाँ पे आकर उस ज़मीन को ख़राब ना कर दे. What is the age of man according to good book? बेटा यहाँ गुड बुक का रेफरेंस बाइबल की तरफ रेफ़र किया गया है और हमने इस चैप्टर में भी ये बारहा पढ़ा, बताया भी गया आपको कि बाइबल के अकॉर्डिंग इंसान की जो औसत उम्र है दैट इज़ 3 years and 10 which means 70 years. So 70 years is the age of man according to good book. Now moving to the next segment, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बोर्ड में आपका सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो क्वेश्चन आंसर्स का होता है, जो कि 30 मार्क्स के फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक 1 है और बुक 3 है, इनके जो क्वेश्चन आंसर्स आपको आते हैं बोर्ड में वो हैं टोटल 15 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं 30. लिहाजा इसको आपने बहुत गौर से, बहुत तवज्जो से सुनना भी है और साथ साथ इन पॉइंट्स को भी नोट करना है जो मैं आपको भी बताऊंगी. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 60? आंसर डेफिनेटली आप सबने याद किए हुए हैं, लेकिन जो चीज़ याद करने वाली है वो ये देखें, क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है और जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो है पास्ट. व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन, उसकी फीलिंग्स क्या थीं? अब अगर आपने इसका आंसर करना है तो आप यहाँ गौर करें, आंसर भी पास्ट टेंस में ही दिया जाता है. अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता तो आप इसके आंसर में भी प्रेजेंट टेंस यूज़ करते. ये इन्फॉर्मेशन बताना बहुत ज़रूरी है. बच्चे बाज़ों का सारा क्वेश्चन आंसर सही कर लेते हैं लेकिन टेंस की मिस्टेक की वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं. तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, what were the feelings of the old man at the age of 60? The old man was, यहाँ पे was use हुआ है, as fresh as the month of May even at the age of 60. He was, again was, neither tired nor bored with his life. His spirits and passions were. आप देखें जहाँ पे भी नई जुमले की नया जुमला स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जुमले के अंदर पास्ट टेंस के साथ ही उसको कंप्लीट किया गया है. ये एक टेक्निक है अपने क्वेश्चन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की. अगर आप आंसर सारा सही लिख दें लेकिन आप उसमें टेंस की मिस्टेक कर दें तो बेटा उसमें आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. His spirits and passions were still high. He worked hard as much as any man could do. Now could, second form of can. Again यहाँ पे हमने past tense को use किया है. To work hard was the fever of his born and he continued, second form of continue, working till the old age. अब इसके आंसर को आप अच्छी तरह से याद भी करें, साथ में इन पॉइंट्स को भी अपने जहन में रखें जो कि आपको बताए गए हैं. सेकेंड क्वेश्चन, बिफोर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है और कौन कौन से ईयर में आ चुका है. यानी कि दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू.
अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें. Why did the old man take the steep path? एक बात और याद रखिएगा बच्चों, अगर जुमले में did का इस्तेमाल हो जाए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. यहाँ पे did आया है तो आपने यहाँ पर take को took नहीं करना, लेकिन जब आप आंसर में जाएंगे और did इस्तेमाल नहीं होगा तो आप फिर उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, सो यू आर सपोज टू गिव आंसर इन पास्ट टेंस. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ते का ही इंतखाब क्यों किया. इन द बिगनिंग द ओल्ड मैन कुड, नाउ कुड अगेन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन, could not climb the easier path with the passage of time. He recovered, ed, addition of ed tells us about second form, about the past tense, his health, and got is second form of get, got better. So he took. Now if you look at the question, the word is take and did is also used in the question, लेकिन जब आपने आंसर में लिखा तो आपने उसकी सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया. So he took the steep path which was different. He wanted to show his fitness to his son. Wanted again second form of want, and this climbing was difficult for his son, but he did it successfully. In this way he proved his fitness. यहाँ पे वो तमाम रीज़न्स बयान किए गए हैं जिसकी वजह से उसने स्टीप पाथ को चूज़ किया. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई. जेस फादर, नाउ यू सी हेयर एन एपोस्ट्रोफी. यहाँ पर चूँकि एस जेस के नाम में आता है तो हमने उसको एस को रिपीट नहीं किया, हमने उसके लिए एक छोटा सा कोमा, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसे, यहाँ पे हमने ऐड किया, जिसका मतलब है जेस के वालिद. पोजेशन की सेंस में यूज़ होता है. हैड मेड हिम आ वुडन प्लॉव. क्वेश्चन ये है कि बेटा 6 साल की उम्र में क्यों रोया. तो उसके वालिद साहब ने जो उसको एक छोटा सा लकड़ी का एक खिलौने की तरह का प्लॉव बना के दिया था, विच ही लॉस्ट इन द फील्ड्स. सो ही क्राइड ओवर द लॉस ऑफ दिस वुडन प्लॉव. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सवाल भी बोर्ड में बारहा आ चुका है और इन 3 सवालों के जवाबात आपको दिए गए हैं, लेकिन ये 2 आपकी असाइनमेंट का हिस्सा होंगे. एंड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लें. व्हाट मोरल लेसन डज द स्टोरी टीच. ये जो कहानी हमने अभी इसकी एक्सरसाइज की, जो लेसन आपने पढ़ा, इसका मोरल लेसन क्या है, इससे आपको क्या सबक मिलता है, इसका आंसर आपने लिखना है. इन व्हाट वे डज द अचीवमेंट ऑफ जेस फादर डिज़र्व प्रेज. किस लिहाज से जेस के वालिद साहब की ये जो सारी अचीवमेंट थी जो उन्होंने हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, उसको कैसे एक प्रेज़ल चाहिए, कैसे वो तारीफ़ की मुस्तहिक है. इन 2 सवालों के जवाब आपने असाइनमेंट में लिखकर, इनको याद कर आपने कल 10 बजे से पहले अपने क्लास इंचार्ज को सेंड करनी है. नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए अगर बच्चों, तो ये है ट्रांसलेशन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन इज़ द क्वेश्चन इन योर पेपर दैट हैज़ मैक्सिमम मार्क्स. 15 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 8, और इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती. हमारे तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चॉइस दी जाती है, लेकिन ट्रांसलेशन जो आपको दी जाती है आपने उसी पैराग्राफ की करनी होती है. इसका मतलब है कि आप लोगों ने ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो देनी है. 15 इसके टोटल मार्क्स होते हैं और ये आपकी बुक 1 में से आती है, यानी आपकी बुक 3 में से, आपकी प्लेज में से या आपकी पोइम्स में से ये नहीं आती. आपकी ट्रांसलेशन सिर्फ आपकी बुक 1 जो शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है उसमें से आती है, और कोई सा भी एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको. उसमें से इस RNT बुक में आपके कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहा जा सकता है कि चांसेस होते हैं कि वो पेपर में आ सकते हैं. तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स हैं. एक पैराग्राफ में आपकी ट्रांसलेशन मौजूद है जो कि मैं आपको बताऊंगी साथ साथ, और सेकंड पैराग्राफ आपके असाइनमेंट का हिस्सा होगा जिसको आपने कल पहले खुद पढ़ना है, फिर इसको याद करना है और फिर इसको लिख कर आपने उस असाइनमेंट में शामिल करके सेंड करना है अपने क्लास इंचार्ज को.
सो पैराग्राफ नंबर 1, आपने ये नीचे जो ट्रांसलेशन दी हुई है इसको फ़िलहाल नहीं देखना, आप कोशिश करें मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करने की ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। रिमेंबर, याद है, व्हेन वी सैट, जब हम बैठते थे, बीनीथ, नीचे, दीज हिकरीज, हिकरीज बेटा कहते हैं अखरोट के दरख्तों को, एंड द स्क्रल्स, और स्क्रल्स कहते हैं गुलहरियों को। थ्रू, फेंका करती थी, ग्रीन हिकरी शेल्स, शेल्स कहते हैं बेटा खोल, किसी भी चीज़ का खोल, जैसे आप वाकिफ़ हैं जो अखरोट है उसका जो शेल है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि सब्ज़ अखरोट के खोल, डाउन एट अस, नीचे हम पर। याद है जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे और गुलहरियाँ हमारे ऊपर सब्ज़ अखरोट के खोल फेंकती थीं। यहाँ पर जेस के वालिद साहब जेस को मुखातिब करते हुए कुछ पुराने वक्तों की याद दिलाते हैं और उसको वो वक्त याद दिलवा रहे हैं जब वो छोटा था और वो अपने वालिद साहब के साथ आया करता था इन जगहों पर, और वो बैठकर अक्सर कभी गुलहरियों का शिकार करते थे, कभी वो मौसम पे बात करते थे, और वो कभी कभी दरख्तों के नीचे बैठते थे, अखरोट के दरख्तों के नीचे, जिसके ऊपर गुलहरियाँ उनके ऊपर खोल फेंका करती थीं अखरोट के। तो यहाँ पर वो उसको उस मेमोरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, सुबह की हवा दिन के निकलते वक्त की, यानी जब दिन का आगाज़ होता है उस वक्त जो सुबह की हवा है, इन अगस्त, अगस्त के महीने में, वॉज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेना उसमें कितना खुशगवार लगता था। यहाँ पर ये उस वक्त की उसको याद दिलवा रहे हैं जो अगस्त का हुआ करता था, जिसमें वो हिकरी ट्रीज़ के नीचे बैठा करते थे और सुबह सुबह की ताज़ा हवा में वो सांस लेते थे, जो कि एक अच्छा और खुशगवार एहसास था उनके लिए। अब इसको ट्रांसलेट करें। अगस्त के महीने में दिन निकलते वक्त सुबह की हवा में सांस लेना कितना खुशगवार लगता था। आई, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि इस चैप्टर में जो आई है वो जेस अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस ट्रांसलेशन में चूँकि जेस के वालिद साहब उसको बता रहे हैं कुछ माजी की यादों के बारे में, तो यहाँ पर जो आई इस्तेमाल हुआ है ये जेस के फादर के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई कांट फॉरगेट दोज डेज़, मैं इन दिनों को, उन दिनों को भूल नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, बेटा राइप का मतलब होता है पकना, जैसे हम अक्सर बोलते हैं फ्रूट्स राइप हो जाना, फलों का पक जाना, तो यहाँ पर राइप से मुराद पक जाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे उसका मतलब है कि वो बड़े हो जाते थे, यानी जवान हो जाते थे। खरगोश की बात हो रही है, खरगोशों की, कि अक्टूबर के महीने में जब खरगोश बड़े हो जाते थे, एंड द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट बेटा कहते हैं धुंध, जब शदीद धुंधें पड़ती हैं तो उस मौसम को फ्रोस्ट कहा जाता है, उस धुंध को फ्रोस्ट का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, हैड कम, और धुंधें पड़ती थीं, एंड द हिकरी लीव्स, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते हैड टर्न्ड येलो, जर्द पड़ जाते थे। येलो से मुराद यहाँ पर उनका पीला पड़ जाना, यानी ख़िज़ा के मौसम में नॉर्मली पत्ते येलो कलर के हो जाते हैं और उसके बाद वो गिर जाते हैं और उसके बाद नए पत्ते आते हैं, तो उस वक्त की बात वो कर रहे हैं। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, यानी अक्टूबर के महीने में जो हवाएं चलती थीं, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज़, तो वो रसलिंग होती है बेटा किसी भी चीज़ में सरसराहट, और नॉर्मली ये दरख्तों की पत्तों की सरसराहट से इसको रेफ़र किया गया है। तो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी वो हवा जो अक्टूबर के महीने में चला करती थी। एंड दे फेल, और वो गिरते थे, लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, जैसे कि पीले रंग की बारिश के कतरे, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। यानी अक्टूबर के महीने की बात कर रहा है, और जब अक्टूबर के महीने में हवाएं चलती थीं तो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती थीं और वह ज़मीन पर पीले रंग की बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बोर्ड में, कोशिश करें उस पैराग्राफ को 3 से 4 दफ़ा सिर्फ उसको स्टडी करें
اس کو ریڈ کریں اور غور کریں ان لفظوں پر جو آپ کو لگتا ہے کہ جملے کے اندر آپ کو ٹرانسلیشن میں کے لیے اس کے ورڈز جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے. تو 3 سے 4 دفعہ اس کو ریڈ کر ان ورڈز کو انڈرلائن کر پہلے لفظ بلفظ ترجمہ کریں, اس کے بعد پوری لائن کو ایک شیپ دے کر پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسلیشن کی طرف جائیں, کیونکہ یہ 15 مارکس کا کوسچن ہے تو اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. سیکنڈ پیراگراف آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, میں اس کو ریڈ کر دیتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن کل کے اسائنمنٹ میں اس کو پہلے خود پڑھنا ہے 2 سے 3 دفعہ, پھر اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسائنمنٹ کی شکل میں مجھے کل سینڈ کرنا ہے اپنے کلاس انچارجز کو. سو لیٹس ریڈ دس پیراگراف. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. We reached the limbless trunks of trees, these tall, straight pines whose branches reached towards the blue depth of the sky, or the white cloud that was now gone. I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness right on the top mountain. یہ پیراگراف آپ لوگوں نے 3 سے 4 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اس پیراگراف کو اپنے اسائنمنٹ میں لکھ کر زبانی لکھنا ہے اور پھر اس کو اپنے اسائنمنٹ میں لکھ کر مجھے یا اپنے کلاس انچارج کو سینڈ کرنا ہے. بیٹا یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پیراگرافس ٹرانسلیشن پوائنٹ آف ویو سے جو کہ بورڈ میں آ چکے ہیں وہ آپ کو دیے گئے ہیں. اس پیراگراف کے ساتھ ساتھ only twice did my father stop, یہ پیراگراف کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 8 پیراگرافس آپ کو دیے گئے ہیں. ان میں سے میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں جو کہ آپ نے سالو کرنے ہیں. سارے کر سکتے ہیں تو گڈ اینڈ ویل, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ یہ پیراگراف نمبر 3, پیراگراف نمبر 6 اور پیراگراف نمبر 8 ان کو تو آپ لازماً سالو کریں اور یاد آپ نے سارے کرنے ہیں. لیکن اسائنمنٹ میں آپ یہ 3 کوشش کریں کہ لکھیں. اگر سارے لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ 3 پیراگراف آپ نے اسائنمنٹ کا حصہ بنانے ہیں. یاد آپ نے سارے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے تو میں آپ کو ان کی طرف بھی باؤنڈ نہیں کروں گی, آپ کوشش کریں کہ فل چیپٹر کی ٹرانسلیشن ہی یاد کریں. لیکن چونکہ یہ RNT ہے تو اس کے اندر میں آپ کو یہ کام اسائنمنٹ کے طور پر دے رہی ہوں, لیکن اس کو آپ نے فل لرننگ کرنی ہے اس کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیکسٹ جو ہمارا اس ایکسرسائز کا کوسچن ہے اور یہ پروبیبلی لاسٹ کوسچن ہے اس ایکسرسائز کا, وہ ہے پیئر آف ورڈس. سب سے پہلے بیٹا پیئر آف ورڈس کے بارے میں آپ کو یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ پیئر آف ورڈس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ جو ورڈس ہوموفونز ہوں. ہوموفونز مین ہیونگ سیم ساؤنڈس. صرف سیم ساؤنڈز والے ورڈز ہی پیئر آف ورڈز نہیں ہوتے, بلکہ ہر وہ ورڈ جو دوسرے ورڈ سے کسی نہ کسی پرسپیکٹیو میں میچ کر رہا ہو. فار ایگزامپل میننگ میں میچ کر رہا ہے, فار ایگزامپل اس کی پروننسیشن سیم ہے, فار ایگزامپل اس کے اسپیلنگ سیم ہیں. ہر اس ورڈ کو آپ پیئر آف ورڈ کی کیٹیگری میں لکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس مختلف قسم کے پیئر آف ورڈز آتے ہیں. ہماری اس ایکسرسائز میں بھی ہمارے پاس 10 پیئر آف ورڈز ہیں, جن میں سے 6 یہاں پہ سالوڈ ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی, اور باقی 4 آپ کے اسائنمنٹ کا حصہ ہوں گے. سب سے پہلے اگر ہم جائیں پیئر آف ورڈ کی طرف, تو یہ ایک پیئر ہمارے پاس دیا گیا ہے جس کی پروننسیشن سم ہاؤ سیم ہے, لیکن ایک ہمارا جو ورڈ ہے وہ اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے, دیٹ از افیکٹ, جس کا مطلب ہے متاثر کرنا. اٹ از اے ورب, اٹ ایکٹس ایز اے ورب ان اے سینٹینس. اور جو ای سے ہے دیٹ از ایفیکٹ. آپ اس پہ غور کریں, افیکٹ اور ایفیکٹ سم ہاؤ یہ ہوموفونز ہیں اور ان کے میننگ بھی سم ہاؤ میچ کرتے ہیں, لیکن ایک کا جو رول ہے گرامر میں وہ ہے ایز اے ورب, اور ایک جو ہے وہ ایز اے ناؤن سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے. فرسٹ والے اگر ورڈ کی طرف دیکھا جائے تو اسموکنگ ول افیکٹ یور ہیلتھ. یہ پیئر آف ورڈ 9 دفعہ بورڈ میں آ چکا ہے, یعنی کہ آپ اس کی سگنیفیکینس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور سیکنڈ والے کی طرف جائیں, ایفیکٹ کسی چیز کا اثر ہونا, کسی چیز کا اثر یعنی کہ ایز اے ناؤن. مائی ایڈوائس ہیڈ نو افیکٹ آن ہم, میری نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا. نیکسٹ از affection, affection.
मोहब्बत. Children need affection and care. Children need affection and care. And the next word is affectation. Affectation जिसका मतलब है बनावट. अब आप देखें यहाँ पर इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हैं, इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं, लेकिन somehow इनकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से इनको एक पेयर में लिखा गया है. इसका जुमला है we should have no affectation at all. We should have no affectation at all. और ये 2 दफ़ा बोर्ड में आ चुका है. अब आपके सामने एक पेयर ऑफ वर्ड मौजूद है जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है. एयर एयर, एयर एयर, एयर ए से जिसका मतलब है हवा, और एयर एच से जिसका मतलब है वारिस. हम इसको मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, कभी कभी हम इसको हेयर बोल देते हैं. दिस इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज एयर. सो एयर हवा, वी शुड गो आउट फॉर सम फ्रेश एयर. And heir, he is an heir to a large estate. किसी चीज़ का वारिस होना. Next pair of word is allusion. A से allusion जिसका मतलब होता है कोई इशारा या कोई अलामत. His poetry is full of allusions. The word is allusions. और next word is illusion. I, illusion. The sound at the beginning is E. और ए में एल्यूजन. तो इल्यूजन का मतलब होता है सिराब. सिराब का मतलब होता है धोखा, कोई ऐसी चीज़ जो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है और वो किसी किस्म का सराब है. दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट एन इल्यूजन. ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है, सराब है. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्टर. ऑल्टर एंड ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, किसी चीज़ का मुतबादिल होना. You will have to alter this plan. और alter कुर्बानगा. They brought a cow to the altar. A place where you alter something, जहाँ आप किसी चीज़ की कुर्बानी करते हैं. तो ये होमोफोन्स हैं, यानी इनके साउंड्स बिल्कुल सेम हैं और इनमें सिर्फ ये ए और ई का डिफरेंस है, बाकी इनके साउंड्स बिल्कुल सेम हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ amiable. खुश मिजाज. He is friendly and amiable. ये एक फीचर कह सकते हैं, एक एडजेक्टिव कह सकते हैं आप. amiable इसका मतलब होता है खुश मिजाज. amicable. The next word is amicable. दोस्ताना. friendly. They enjoy amicable relations. They enjoy amicable relations. Now students, these 4, 17, 18, 19 and 20, you are supposed to write their meanings and at least one sentences for each word. इसकी मैं एक्सरसाइज आपको आपके असाइनमेंट में दे रही हूँ. आपके असाइनमेंट का हिस्सा है कि आपने इन 4 पेयर ऑफ वर्ड्स को आप लोगों ने ट्रांसलेशन इनकी लिखनी है, मतलब मीनिंग्स लिखने हैं. उसके बाद आपने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, पेयर ऑफ वर्ड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसमें सिर्फ 2 ही वर्ड्स होंगे, उसमें मोर देन 2 भी हो सकते हैं. यानी कि मोस्ट पॉसिबली उसमें जितने वर्ड्स उस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आपके उस कैटेगरी का हिस्सा बन जाते हैं. तो ये आपने 4 पेयर ऑफ वर्ड घर से आपने असाइनमेंट बनाकर कल मुझे 10 बजे से पहले अपने क्लास इंचार्जेस को और अपने टीचर्स को, रेलेवेंट टीचर्स को इसको सेंड करना है. होपफुली क्लास आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा. आप लोग इसको घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे और कोई चीज़ अगर आपके लिए अनक्लियर रह जाती है तो आप उसको पूछ सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा. नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.